Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Pooja. Have you completed your old assignments? Have you Yes, ma'am. Complete कर रहे हैं. complete कर रहे हो? Okay, do it fast because this time you will be having na. I will give you today some assignments you have to do. That's why, because your internal examination date has been already announced. So on the basis of your assignments, you people will be getting marks for this one. Okay. Yes, ma'am. Okay. First, just try to have something on your this, what I should say, active and passive voice. इस पे थोड़ा सा ना ध्यान दो, active और passive voice पे. Today I will come to this one. Okay, ma'am. Okay. Just let's join all of them. I will just show you these things, how you have to do all those. Okay. I'm just waiting for 2 more minutes. Okay, now I think I should start my class. Okay. So you all know in your third semester you will be having total number of. Can you see the screen? I have shared the screen with you. Are you able to see? All of you? Yes, ma'am. Okay, great. Now I'm just starting now. See, there are total 10 modules. Have you seen your syllabus? Any one of you? Have you gone through the syllabus? किसी ने देखा है syllabus अभी तक खोल के भी कि नहीं? Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Syllabus देखिए वो. So in the syllabus you have seen there are total number of modules at 10 and we will also perform 10 experiments. ठीक है. हम यहाँ पे 10 experiments करेंगे. तो आज हमारा है आपका experiment है writing skills. क्या है experiment? Writing skills. Now what do you mean by writing skills? Writing skills से आप क्या समझते हैं? What do you understand by writing skills? Please tell me. क्या समझते हो? Writing skill क्या होता है? What do you mean? ये writing skill क्या होता है? What do you mean by writing skills? क्या है writing skill है क्या? I just want to know that one from your point of view. आप लोग जो लिखते हैं क्या वही है writing skills? Anything other than that? No, ma'am. वही है. वही. तो जब हम लोग writing skills लिखते हैं तो writing skills में हमारा क्या होना चाहिए? What should be our point when we are writing something? Then what should be our point of view?
There, do you know there are many courses on writing skills that aims to provide to improve the students' writings in the two levels. First one is there the global level of idea development that supports your professional career in a more detailed level, जिसमें हम capital letters, punctuations and all those things. And क्या होता है हमारा use? क्या होता है यूज किस में हम लोग करते हैं वेर वी यूज हम लिखते टाइम लिखते हैं कहाँ किसमें पे कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप। एकेडमिक राइटिंग ठीक है एकेडमिक राइटिंग उसको बोला जाता है हमारा एकेडमिक राइटिंग ठीक है समझ में आया यूज कहाँ पे है हमारा एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं ना हम लोग कि बिना लिखे पढ़ते हैं लिख के पढ़ते हैं Now if I say academic, तो academic में क्या होता है? Academic writing में क्या होता है? Language जो होता है क्या होता है? Yeah. मैम आई वांट टू से समथिंग। Yeah, please मैम say. अब हम लोगों को ना मैम एक्सपेरिमेंट 2 में ही राइटिंग स्किल बताई हैं। बाकी तो बहुत नया ज्वाइन किए हैं। ओह ओके मैम, मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं ना, हमको लगा कि आप मतलब आपको लगा कि हम लोग का नहीं हुआ नहीं, है। बाकी लोग भी ज्वाइन ठीक है किए मैम। हैं। Because you, how many of you are new for this experiment? Please tell me. किसने किसने नहीं किया थोड़ा बता दीजिए। मैम मेरी रागिनी पांडे। हाँ और मैम हम हाँ और anyone else? सचिन मैम फर्स्ट छूट गया था मेरा। फर्स्ट छूट गया था। हम तो जान रहे हैं बहुत कोई का छूटा है। When you will come to college ना हमको I think that I have to revise it again. Then also many students will say that I have not attended. ये बहुत problematic हो जा रहा है हम लोग के लिए भी repeat up करना you know. Yesterday I have also taken the class of mechanical. There are also the same problem. So I have decided up to where I have completed the experiments up to there only I will work for because your internal examination is also there na. Have you got the notification of your internal examination? Yes ma'am. Yes. So you know you have to do assignment also for this communication skill lab. Do you know? No. Today I will give you today I will give you the assignments from this writing skills. Please do it. I will provide you my mail. In that mail ID you just post it, okay? ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मेल कंपोज करना आता है ना? Do you know how to mail? सिर्फ मेल आईडी से मेल भेज देना ही मेल होता है क्या? How many of you know how to compose a mail? Because many students are here don't know how to compose a mail. मेल कैसे भेजा जाता है वही नहीं पता है। Is there anyone ऐसा कोई है? Respected ma'am, this is assignment number 1 or this is assignment number 2. ठीक है, this is assignment number 1. So respected ma'am, assignment number 1 of this code. ठीक है, please find the attachment. You have to attach those PDF. लास्ट में सिर्फ मेल नहीं करना है, योर नेम, योर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, योर ब्रांच, योर कॉन्टेक्ट नंबर। मैम या असाइनमेंट नंबर 1 2 ये सब तो हम मतलब पूछे थे आपसे, तो आप बोल रही थी कि अभी सिर्फ बनाना है असाइनमेंट नंबर पर। नो दैट थिंग विल बी डिफरेंट, दैट थिंग विल बी आई विल टेक फॉर सबमिशन, इट इज फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस ओनली। तो मैम एक बार बता दीजिएगा ना कि असाइनमेंट 1 में किसको सेंड करना है। इसको जो आज में देंगे किस- आप लोग इन द सेकंड क्लास व्हिच आई विल गिव।
अच्छा वो सबमिट करना जो आज देंगे। या आज हम जो देंगे उसी को सबमिट करना है, अच्छा ओके मैम। ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास फर्स्ट जो लोग राइटिंग स्किल्स के लिए नए हैं उन लोग को भी थोड़ा बता दे रहे हैं। टुडे यू विल आल्सो लर्न समथिंग इन अ डिटेल्ड वे हाउ यू हैव टू राइट। गॉट इट? ओके मैम। ओके मैम। ठीक। तो राइटिंग स्किल्स हमारा क्या है? एकेडमिक राइटिंग क्या होता है हमारा? बेसिकली क्या होता है? फॉर्मल राइटिंग होता है, पैराग्राफ्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब पैराग्राफ में क्या होता है? अब पैराग्राफ हमको बता पाइएगा, व्हाट इज अ पैराग्राफ? A paragraph is a group of sentences that supports the main idea. You are having a main idea that is supporting the sentences which are supporting them. It is known as paragraph. And how you will say it is a good para or it's a bad para? But how you will say? By the topic sentence, by the supporting sentences, by the logical order, and by the united means unity. Unity means here when all the sentences in a piece of paper, what things you are being writing, relate the main idea. That is the unit. You cannot go beyond the topic. Next one, हमारा सबसे पहला होता है क्या? कैपिटलाइजेशन रूल। कैपिटल वर्ड कहाँ यूज करते हैं? The first word in a sentence, the pronoun, abbreviations. अब abbreviation समझ में आता है कि नहीं आता है? यस मैम। आता है। किसको नहीं आता है? बोलने में शर्म मत करो, एकदम मुंह खोल के बोलो। How many of you people? हाँ, नहीं आता है। बचपन में यूनेस्को पढ़े हो? बचपन में यूनेस्को पढ़े हो? UNESCO, यूनेस्को पढ़े हो? USA पढ़े हो? These things are called abbreviations, ठीक है? Now, अब होता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ जाता है हमारा? नेम ऑफ डिटीज, जैसे अल्लाह, गॉड, शिवा, दुर्गा, काली, जेसस, इसमें नेम ऑफ पीपल, अब उन लोग का टाइटल्स भी। नेम ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है हमारा? द नेशनलिटीज, द रेसेस एंड द एथनिक ग्रुप्स, द लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, ठीक है। थर्ड क्या हो जाता है हमारा? फोर्थ स्पेसिफिक प्लेसेस नेम्स। फिर क्या होता है? ज्योग्राफिक एरियाज का नेम, नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्पोर्ट्स टीम, ठीक। इस तरह का चीज में हमारा कैपिटल लेटर का यूज होता है। अब नेक्स्ट पार्ट, पैराग्राफ हम लोग जानते हैं। द पैराग्राफ कंटेन्स द मेन बॉडी, सॉरी इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट द मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये होता है। तुम लोगो इसी डिपार्टमेंट से, यू पीपल आर फ्रॉम इसी डिपार्टमेंट, प्लीज नोट डाउन योर असाइनमेंट। आफ्टर दैट आई विल से व्हाई योर पीपल आर स्टडीइंग इसी। जस्ट टेल मी फर्स्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ यू हैव चूज इसी, क्यों? What is the significant role? इसी पढ़ के क्या होता है? Basically, what is the aim? बताइए प्लीज, वन बाय वन। क्यों पढ़ रहे हो इसी? अनुष्का कुमारी, यस मैम। टेल मी। मैम जिस टाइम डिप्लोमा में लिए थे इसी, तो उस समय उतना पता नहीं था, बट हाँ इसी एक पता है अभी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कंप्यूटर वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे हम लोगों का मतलब उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कैसे हम लोग उसको जानते हैं, तो यही सब पढ़ना रहता है इसमें। तो फिर आगे जाके इससे इसीलिए क्या है? When you will go further, how you can benefit the society?
by providing many new types of electronic devices. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस फील्ड के लिए होगा? क्या मैम? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस फील्ड के लिए होगा? मैम क्वेश्चन नहीं समझे आपका। आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वेंट अप या करोगे कुछ भी, यस मैम। तो किस फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोबोटिक्स किस जगह पे काम आएगा? सोसाइटी को आप क्या दोगे? आप जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू. You people are studying ECE, how it will benefit the society and the tribal sector. ये ट्राइबल सेक्टर को और एक सोसाइटी को किस तरह से हेल्प कर सकता है? प्लीज टेल मी. पढ़ते सबको ही है मैम, नया नया डिवाइसेस आएगा तो जो अभी और जितना प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद भी नया क्या डिवाइस आएगा। problem? तो मतलब मैम जैसे एग्रीकल्चर में नया नया इन्वेंशन अगर होगा मैम, हाँ, तो तो उससे क्या तो होगा? और न्यू फायदा यूज ही ऑफ होगा पेस्टिसाइड एंड farmers को। इंसेक्टिसाइड. नो मैम, तो बोलो डिवाइसेस होगा, ये नहीं प्रॉपर नेम, डिवाइसेस। ये चीज नहीं है. अब हमको प्रॉपर नेम बताइए आप, बिकॉज यू पीपल आर नॉट इनफ ग्रोन अप. और आप लोग सबसे बड़ा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आए. The thing is that how you will benefit the society by studying ECE, the tribal sector. Think. How? ये पढ़ाई पढ़ के अब क्या सोसाइटी को बेनिफिट क्या दो? क्या नया चीज काम कर सकते हो आप उसमें? पढ़ाई का मकसद डिग्री लेना है कि कुछ नया समथिंग करना है, समथिंग रिसर्च करना है. हाउ, कैसे ये पढ़ाई हमको सोसाइटी कैसे बेनिफिट दे? मैम जैसे 4G आया फिर 5G आया, वैसे करके इसी So your topic मैम assignment you write. मैम जैसे बहुत कोई है वो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑफ कॉस्ट, उसका कॉस्ट ज्यादा है, तो मतलब चीप एंड बेस्ट में कुछ टाइप से। ठीक है, चीप एंड क्वेश्चन क्या बेस्ट. है? बोलिए बोलिए प्लीज. क्वेश्चन क्या है? इसी की पढ़ रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या था आपका कि हम लोग इसी क्यों पढ़ रहे हैं? ये चीज इसीलिए आप क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ के आप सोसाइटी को क्या बेनिफिट देंगे, स्पेशली द ट्राइबल सेक्टर. इसी ही पढ़ रहे हैं. पहले तो खुद के लिए, उसके बाद आप सोसाइटी खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट, इस जनरेशन को और सब्जेक्ट का स्पीड देने के बेनिफिट. लिए, जनरेशन को और स्पीड देने के लिए. हाँ, तो ट्राइबल सेक्टर से इसमें क्या बेनिफिट होगा? मैम जैसे पहले तो 1G आया, 2G आया, उसी तरह ट्राइबल आगे बढ़ते जा सेक्टर, रहा आई है. वांट टू नो अबाउट द ट्राइबल सेक्टर. आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस 3G 4G 5G. अगर ये ट्राइबल सेक्टर के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हो देन यू कैन से. मैम हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा। You have told robotics, तो robotics के साथ आप रिलेट कर सकते हैं इसको. You can correlate with it. रोबोटिक्स का यूज के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. Think my question is quite tough. It's a kind of research question. So this is your assignment. You have to write. ठीक है? Got it? Okay, ma'am. लिखना कैसे है ये भी सुन लीजिए. First will be your summary.
समरी होगा 100 वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेट होगा 12 न्यू टाइम्स रोमन। न्यू टाइम्स रोमन में लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। समरी समरी के बाद क्या समरी क्या होता है? समरी जो पूरा आप जो इसको लिख रहे हैं, द फुल कंटेंट यू विच यू आर राइटिंग, दैट इज समरी। अब समरी में आप 4G ले सकते हो, 5G भी ले सकते हो। टॉपिक ले सकते हो, दैट इन्वेंशन ऑफ 5G has changed the life of tribal people. The invention of robotics have helped the agricultural sector. Tribal area को ही लेना, either agriculture, animal husbandry, ट्राइबल एरिया। बेसिकली आप झारखंड को भी ले सकते हो, ठीक है। हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड, ओके, ठीक है। यू कैन टेक द टॉपिक विल बी, उसमें से आप कोई भी एक चीज लोगे टॉपिक, एनीथिंग, इट कैन बी मोबाइल्स, इट कैन बी रोबोटिक्स, एनीथिंग कैन, बट द ट्राइबल सेक्टर। समरी क्या होता है? जो पूरा चीज आप लिख रहे हो, ऑन विच यू आर राइटिंग, दैट इज द समरी। और आपने उसमें क्या फाइंडिंग किया है खुद का, ये चीज का मीन्स इन्वेंशन हुआ है, सो व्हाट इज योर फाइंडिंग, आपने क्या फाइंड अप किया है, उस चीज को आपको वहां लिखना है। आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड आई थिंक 12 to 20 बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स टू फाइंड आउट। 3 lines finding you have to write in the summary last. If you are using any kind of new keywords, suppose I am not from this computer science or robotics, all those background, how I will know about it? So some terms or some words are there which are scientific words. Please write in the keywords that word and the definition of that word. समझ जाओ इसको अच्छे से। समरी होगा फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन। You have to introduce about this thing, from where it has been invented, okay, who have invented in first, in which year, where, all those introduction you have to give. After that, your objective. What is the basic objective? At least you have to write 3 objectives. The 3 objectives, what you are going to find out or what you are going to discuss in that. Suppose that my objective is, है ना, मेरा first objective होता है यहाँ पे कि हमको the condition of the tribal communities before 5G, before the invention of 4G mobiles. Next, after the invention of 5G, after the invention of 4G mobiles, how the life of tribal people have changed. Next, the impact of 4G mobile phones on the lifestyle of tribal people. ये हमारा objective. Got it? This is our objective. अब इस objective को हमको लिखना है 3 lines. There are 3 objectives that I am going to discuss in this paper. Or you can say there are 3 objectives that I am going to discuss in this paper, or you will write, then it will be good. उसके बाद हमारा आता है discussion. क्या आता है? Discussion. Discussion में क्या लिखना है? जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है।
आर यू गेटिंग मी और नॉट? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। अभी तक चीज समझ में आया है कि नहीं? मैम डिस्कशन में क्या लिखना है? डिस्कशन का पहले तक समझ में आया है कि नहीं? पहले सब कुछ बोलो। यस मैम पहले Yes, तक ma'am. समझ आ गया। Anyone is having any queries, any question, you may ask. No queries? ना डिस्कशन जो है हमारा, हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखा 3 कि मेरे इस पेपर का ये ऑब्जेक्टिव्स। See, this is how your writing skills, ठीक है? हम बता रहे हैं सब। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हो गया डिस्कशन में हमको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करना। The 3 objectives what I have written, I have to discuss on those things. ठीक है? और हर ऑब्जेक्टिव से हमारा क्या फाइंडिंग निकल रहा है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से हमारा क्या फाइंडिंग निकला कि पहले लाइफ ऐसा था, अभी लोग का लाइफ में ये चेंजेस हुआ है। व्हाट इम्पैक्ट, जब सेकेंड मैंने 3G आया तो ये चेंज हुआ, जब 4G आया तो ये चेंज। फ्यूचर के लिए हम लोग देख सकते हैं 5G विल कम, यू हैव टू गिव द फ्यूचर assumption also. फ्यूचर assumption अगर 5G आ जाता तो और ट्राइबल्स का लाइफ किस तरह से इजी हो जाएगा, ये लास्ट में लिखना। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू राइट इन द लास्ट। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हल्का हल्का कंक्लूड अप करना है कि वी हैव कंक्लूडेड दैट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव वी हैव गॉट द रिजल्ट। उस रिजल्ट के बारे में आपको लिखना है, आपके फाइंडिंग्स के बारे में लिखना है। जो ऑब्जेक्टिव्स आपने दिया था उससे आपने क्या फाइंड आउट किया है, क्या नया फाइंड आउट किया है, व्हाट न्यू थिंग यू हैव फाइंडेड आउट, दैट थिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द कंक्लूजन। जो मेरा 3 ऑब्जेक्टिव था उससे मेरा फाइंडिंग क्या हुआ। उसके बाद आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस होता है 2 तरह के, एक होता है प्राइमरी रेफरेंसेस, एक होता है सेकेंडरी रेफरेंसेस। प्राइमरी रेफरेंसेस होता है जो हम लोग ऑर्डिनरी में सॉफ्ट कॉपी में, सॉरी हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो हमारा प्राइमरी सोर्सेस होता है। या कोई इंसान जिंदा है, उसका हमने इंटरव्यू लिया है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्सेस होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हमने नेट से गैदर अप किया है या यूट्यूब से या कहीं किसी और गवर्नमेंट डाटा, ये से हमने ये किया है, अदर मींस ऑफ सोर्सेस, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस समझ में आया है। इसमें आप विकिपीडिया भी देना है, कौन ऑथर लिखा है, कौन राइटर लिखा है, कहाँ से आप कौन वाला चीज चूज कर रहे हैं। अब इसका भी रेफरेंस जो होता है ना, इसका भी एक लिखने का फॉर्मेटिंग होता है। देखना रेफरेंस में, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जया मुखर्जी, बट रेफरेंस मैंने कोई बुक लिखा है, ईयर लिख दी हूँ मैं 1992 में मैंने वो बुक लिखा है। तो रेफरेंस कैसे होगा, पहले मुखर्जी कॉमा कैपिटल J डॉट इन ब्रैकेट 1992 फुल स्टॉप न्यू डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फुल स्टॉप करुणा प्रकाशन फुल स्टॉप कोलकाता इंडिया। इस तरह से रेफरेंसेस को लिखा जाता है। यू कैन नॉट राइट द नेम एंड ऑल दिस। पहले होता है टाइटल, फिर होता है नेम का कैपिटल लेटर, फिर फुल स्टॉप, फिर इन ब्रैकेट हियर द नेम ऑफ द बुक where you have taken from. After that again full stop. After that the publication of which area, means of which state, the state of which country. ये होता है रेफरेंस लिखने का तरीका। ठीक है, ये होता है हमारा रेफरेंसेस। अब बोलिए, sometimes you can write the meaning,
प्लीज डोंट ट्राई टू चीट, क्योंकि मेरे पास आई हैव वन सॉफ्टवेयर for where I can put, just I have to copy those things, I will put that whole data in that, and from where you have cheated वो पूरा आ जाएगा कहाँ से वो सेंटेंस आपने कॉपी किया। हूबहू don't try to copy the answer. Your grammatical errors, I will just giving you one idea. Grammarly किसी ने सुने हो? Have you heard about this Grammarly? Grammarly के बारे में सुने हो? Grammarly सॉफ्टवेयर No, ma'am. नो मैम। एक ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लेना। उसका प्रीमियम आता है, इट इज अ कॉस्टिंग आल्सो, इट इज अबाउट 3000, और एक फ्री आता है सब्सक्रिप्शन, उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बट बेसिकली यू विल नो योर ग्रामर एरर्स, यू टाइप इट एंड जस्ट पेस्ट इट इन ग्रामरली, वो आपको दिखा देगा आपका कितना % ग्रामेटिकल एरर है उसमें। That will definitely show कितना आपका ग्रामर एरर्स है, कहाँ आपको सुधारने का जरूरत है। फिर कभी भी कोई चीज को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो, बिकॉज दैट थिंग्स आर बीइंग कॉट इन प्लेगरिज्म, वो प्लेगरिज्म में पकड़ा जाता है। जैसे हम ऑनलाइन प्लेगरिज्म में डालेंगे, वो पूरा आपको पकड़ में आ जाएगी कि आपने कितना % चोरी करके लिखा है, from where you copy and paste it. Try to write, the meaning will be the same, try to write in your own words, and the word limit for this assignment is 3000, including the summary. 3000 में लिखना है आपको ये। You are getting 5 days time. Just write it. In the second class, I will share my mail ID. Okay. Join me at 3:10. That time I will come again. If you are having any confusion regarding today's first class, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो हमको। फिर से हम बोल दे रहे हैं, वर्ड फॉर्मेट में रहेगा, डॉक्यूमेंट विल बी वर्ड, न्यू टाइम्स रोमन, फॉन्ट विल बी 12, और हमेशा पैसिव वॉइस में लिखना, डोंट राइट इन एक्टिव वॉइस, राइट इन पैसिव वॉइस। पूरा सब सारा सेंटेंसेस पैसिव में ही लिखना है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कम विथ यू विथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका वर्ड पावर, टेंस, स्पेलिंग्स, वॉइसेस। ये चारों चीज अगर आप लोग को सही हो गया, then you are having a very good writing skill. बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एक्टिव, बट कभी कोई पेपर लिखने के लिए, कोई रिपोर्ट सबमिशन के लिए हमको पैसिव यूज करना पड़ता है। सो आई एम गिविंग यू दिस असाइनमेंट टू बी रिटन इन पैसिव वॉइस। ठीक है? Any confusion, any questions, now you can ask. Ma'am, when we will submit this? Today is 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, up to 16th submit it. Can you? मैम किस में लिखना है? किसमें लिखना है? अभी तो मैंने बोला वर्ड में टाइप करके देना है। सिस्टम में? हाँ? मैम पीसी से या फिर कंप्यूटर? कहीं से भी लिख सकते, अपने मोबाइल में भी वर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके मैम। और मैम उसका प्रिंट आउट भी सबमिट करना होगा? प्रिंट आउट नहीं, पहले उसको हम करेक्शन आपको रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद आप लोग कर लेना। यू जस्ट हैव अ प्रिंट आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम अगर मतलब सबमिट होगा ऑफलाइन तब तो मैम कराना ही होगा प्रिंट आउट, नहीं तो ऐसे तो फोन में भी रहेगा तो हो जाएगा।
करा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैम I have ऑफलाइन shared सबमिट my नहीं mail होगा ना? ID ना, हाँ? ऑफलाइन जब हम लोग जाएंगे तब सबमिट नहीं होगा, ऐसे हम लोगों को ऑनलाइन सबमिट रखना है ना हमेशा? हाँ, ऑनलाइन भी रखना क्योंकि दैट विल बी अ प्रूफ, और ऑफलाइन तो जमा देना ही है, ठीक है। कलर प्रिंट कभी मत कराना, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। यू कैन ऐड सम पिक्चर्स आल्सो, छोटे छोटे कुछ पिक्चर्स दे सकते हो, बट पिक्चर्स देने से एक चीज प्रॉब्लम है, आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा सब चीज। The things will be more typical for you people. Okay, I have sent my mail ID. You can see in the chat box. मैम सबमिशन डेट 17 नहीं कर सकते क्या? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस मैम, ओके, 16 को एग्जाम है मैम, इसीलिए। तो आराम से 20 तक करो, ठीक है। ओके मैम। ओके, अप टू 20 डू, है ना? कब, है ना? और कुछ, एनी मोर प्रॉब्लम? Anyone is having any more problem? Okay, join me at 3:10. Okay, thank you.